morning everyone. Today once again I am here to give you exams classes for competitive examinations. All type of examinations will be varied here. Okay, all types of examination you will find the materials like SSC, CGL, banking, NDA. All types of materials you will get here from this channel. So you, as you know that the name of the channel is English Vision by Manusha. Okay, so let's start. Today we will start. In previous class I have explained about the basic grammar. Today we will start parts of speech. So as you know that parts of speech, first of all definition, you take the definition. Words are, okay, words are divided into different different classes or kinds known as parts of speech. In fact, words are divided into different classes, okay, different classes or kinds known as parts of speech. This is the basic concept of parts of speech. Means words जो है 8 क्लास में डिवाइड किए गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसी 8 काइंड्स को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. तो आई थिंक ये बहुत इजी सेंटेंस है, बहुत इजी डेफिनेशन है, और इसी को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. नोट अगर लगा सकते हैं नोट कर देंगे, ठीक है. नोट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर यूज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर यूज, according to their use, other or as they work in the sentence, ठीक है. as they work in the sentence are known as पार्ट्स ऑफ स्पीच. मतलब हर काइंड, जितने भी काइंड है डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स. मैंने जो बात किया 8 काइंड्स में, तो उनका उनके यूजेज के बेसिस पे, या फिर वो क्या करते हैं, सेंटेंस में कौन सा वर्क करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. तो फुल्ली डेफिनेशन तो ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है. इसमें हम उसको यूजेस को दिखाते हैं कि वो जो पार्ट्स है, काइंड्स है, उनके क्या यूज है अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अदरवाइज दे वर्क इन द सेंटेंस. सेंटेंस में जो वर्क करते हैं उसके बेसिस पे हम लोग उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करेंगे या पढ़ेंगे. दैट विल बी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थिंग. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये फर्स्ट पार्ट है. आप उसके बाद सेकेंड पार्ट इसमें देखेंगे कि अब यहाँ से लिख लेंगे देयर आर 8, ओके, 8. There are 8 kinds, कह सकते हैं, kinds of parts of speech. There are 8 kinds of parts of speech. Number 1, noun. Number 2, pronoun. Number 3, verb. Number 4, एडवर्ब या एडजेक्टिव, पहले लिख लीजिए एडजेक्टिव. नंबर 5, एडवर्ब. नंबर 6, ओके, नंबर 6, प्रीपोजिशन. नंबर 7, कंजक्शन. एंड लास्ट वन इंटरजेक्शन. Okay, so these are 8. Okay, the parts of speech are of 8 kinds. Okay, parts of speech 8 kind की तरह होते हैं, जिसमें से नंबर 1 होगा नाउन, सेकेंड होगा प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ओके, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. So these are 8 kinds,
and these 8 kinds are known as kinds of parts of the speech. So I hope this will be sufficient to understand what are parts of the speech. And once again I am explaining you words are divided into different classes or kinds known as parts of speech according to their use. उनके use के basis पे they are whatever they work in the sentence or also known as the parts of speech. मतलब उसके basis पे ही हम लोग parts of speech को study करते हैं. तो अब देखते हैं कि there are 8 kinds of parts of speech. 8 kinds हैं parts of speech के. तो नंबर 1 क्या हो जाएगा? Noun. सेकंड होगा pronoun. थर्ड वन verb. नेक्स्ट वन एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. ठीक है. तो अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नाउन के बारे में. ठीक है, नाउन के बारे में बात करेंगे. तो इसके सारे एक्सप्लेनेशन आपको दिए जाएंगे, टोटल एक्सप्लेनेशन. यू विल गेट ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशंस अबाउट दिस काइंड्स. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट नाउन. टुडे वी विल स्टार्ट नाउन एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट kind that you have to go into, that you have to study about it. So I think it will be sufficient for you to understand the parts of the speech. And right now you must take a screenshot and I am going to erase the of the board. Okay, so let's see. Now I'll start noun. The very first noun. Okay, the very first thing is noun. Noun जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा. संज्ञा बोलते हैं. ध्यान रखेंगे. नाउन. नाउन का डेफिनेशन एज वी नो दैट. ठीक है, नाउन का डेफिनेशन हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. सिंस आवर चाइल्डहुड वी आर स्टडिंग अबाउट नाउन दैट नाउन इज द name. Noun is the name of person, place, thing, animals, etc. Okay, ये किसी भी तरह की चीजों के नाम को हम नाउन कहते हैं. ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नाउन में हम जब नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स. एग्जाम्पल में नेम ऑफ पर्सन मीन्स सपोज दैट Rohan, person, place, Patna, thing, book, animals, cow, etc. are nouns because in short, since childhood we have been studying this definition of the noun, but right now it's a very simple thing. न्यू डेफिनेशन में अगर हम बात करते हैं, एक डेफिनेशन और बात करते हैं, तो नेमिंग वर्ड्स. Okay, naming words or name of anything. Anything is known as noun. ठीक है, किसी का भी नाम है ना, किसी का भी नाम अगर हम उसको उसके नाम से जानते हैं या किसी के भी नाम को हम देखते हैं तो नाउन कहलाता है. एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर मैं किसी सिटी का नाम लेता हूँ, मान लीजिए हम नाम लेते हैं धनबाद. ठीक है, धनबाद इज अ सिटी, तो इट इज ऑल्सो अ नाउन. अगर हम नाम लेते हैं पेन का, ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, पेन. उसी तरह से कैमल. ठीक है, कैमल. उसी तरह से ग्रास. ठीक है, ग्रास इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ प्लांट. तो इस तरह का, या हर्ब्स. तो इस तरह के जो भी किसी का भी नाम अगर आ जाता है, नेमिंग वर्ड आ जाते हैं, तो उस सारे को हम क्या नाम देते हैं? ये सब नाउन्स होते हैं. तो नाउन्स के बारे में एक और कॉन्सेप्ट आप देखेंगे. कॉन्सेप्ट चीजें की बात मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में ये देखेंगे. कॉन्सेप्ट और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए. कॉन्सेप्ट में देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है ये कि नाउन का जब भी हम नाउन की बात करेंगे, ठीक है, जब भी नाउन की बात करेंगे तो नाउन का एक आइडेंटिफिकेशन ये होता है ना. एक थोड़ा सा माइंड में आप देखेंगे चेक करके. तो नाउन का क्या होता है, जैसे ही किसी नाउन के बारे में आपके बोला जाए, नाउन के बारे में बोला जाए, लिखा जाए, तो नाउन के बोलते ही माइंड में क्या बन जाता है? फिगर बन जाता है. ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं हम, पिक्चर फ्रेम. ठीक है, पिक्चर फ्रेम इन ब्रेन. ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है. अगर किसी भी नाउन का, है ना, अगर कोई भी नाउन, किसी भी वर्ड को, कोई भी वर्ड अगर बोला जाए और उसका अगर पिक्चर ब्रेन में फॉर्म कर जाए, ठीक है,
तो वो क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें, अगर मैं बोल रहा हूँ फैन बोलता हूँ, फैन बोल रहा हूँ, तो क्या फैन बोलते ही आपके माइंड में पिक्चर बन जाती है? अगर पिक्चर फ्रेम कर रही है ना, पिक्चर फ्रेम हो रहा है, तो सपोज कि वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। मैं अगर बात करता हूँ एरोप्लेन की, अगर मैं एरोप्लेन बोला तो क्या आपके माइंड में पिक्चर बना ना, तो अगर पिक्चर फॉर्म किया तो समझ जाएं कि वो नाउन है। उसी तरह से कार, उसी तरह से वाटर, ठीक है, उसी तरह से किसी भी तरह बहुत सारे रेयर, ये बहुत बड़ी कंसेप्ट की बात बता रहा हूँ। अगर माइंड में पिक्चर फ्रेम कर जा रही है तो समझ लो कि वो क्या है, आपका नाउन है। अदरवाइज अगर बहुत सारे ऐसे जगह पे आएंगे जहाँ पे पिक्चर फ्रेम नहीं करता, ठीक है, तो पिक्चर फ्रेम नहीं करता तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता, जरूरी नहीं कि इसके डेप्थ में आप चले जाओ, क्योंकि इसके बहुत सारे कंट्राडिक्शन भी आ सकते हैं, वो मैं बाद में बाद के क्लासेस में मैं दूंगा। तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जब मैं बात करता हूँ तो जैसे देखिए ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल बोलने की बात है तो ब्यूटीफुल जैसे ही आते हैं तो क्या इसका माइंड में पिक्चर बनता? नहीं, ये फीलिंग्स है। जैसे ही फील आप करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को आप फील करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव होगा, फील, ठीक है, फील करना, पिक्चर फ्रेम नहीं करेगा, काइंड, ठीक है। उसी तरह से क्रूएल, क्रूएल, अगली, ठीक है, ये सब फीलिंग्स है। तो जहाँ फीलिंग्स होंगी वो एडजेक्टिव कहलाएंगे, और जहाँ पे बेसिक पिक्चर फ्रेम कर जाएंगे वो नाउन्स कहलाएंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं, नाउन के बारे में बता रहा हूँ, इसे आप नोटिस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एंड इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर आवर कॉन्सेप्ट, ओके। तो दैट्स ऑल, इसको आप कॉपी कीजिए। फिर इसके बाद हम इसके काइंड्स में जाते हैं, 9 नाउन के काइंड्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप यू विल टेक अ फोटो, screenshot of this thing. After that I will see. Now next kinds of noun, okay, kinds of noun। तो जब काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो नाउन को पहले आप समझ ले, ठीक है। नाउन को जनरली आप समझ ले, नाउन एक्चुअली है क्या। नाउन इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज काउंटेबल नाउन एंड सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन। तो नाम से तो पता चल रहा होगा ना, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, ठीक है। ऐसे नाउन्स जिसको आप काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल होंगे, ऐसे नाउन्स जिसको आप काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन होंगे। तो काउंटेबल नाउन्स में आपके पास 3 कैटेगरीज देखते हैं, कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं। तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन, पर्सनल नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन जिसको कहते हैं, प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। थोड़ा ना हिंदी नेमिंग भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये कुछ जगह पे सपोर्ट करेंगे आपको। प्रॉपर नाउन, सेकंड होता है कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। एंड थर्ड होता है, इधर आ जाते हैं थर्ड में, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैटेरियल नाउन, ठीक है, मैटेरियल नाउन को हम लोग बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा, ठीक है, द्रववाचक संज्ञा। एंड फोर्थ नंबर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। और लास्ट वन है आपके पास कलेक्टिव नाउन जिसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। आई होप ये काइंड्स आपको समझ में आ रही होंगी। वंस अगेन, नाउन is basically divided into 2 groups. First is countable noun, second is uncountable noun. Countable nouns are generally 2 types. Countable nouns generally to, ऐसे जनरली आप नाउन को 5 कैटेगरीज या 5 काइंड्स पढ़ते ही होंगे। तो ये 5 काइंड्स जो है वो उसी 5 काइंड्स को 2 कैटेगराइज कर दिया गया है। तो फर्स्ट कैटेगरी हो गए काउंटेबल नाउन, जिसमें प्रॉपर नाउन आ जाएगी जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन जो पूरा कॉमन जाति को इंडिकेट करने वाले होते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। थर्ड होता है मैटेरियल नाउन,
जो अनकाउंटेबल होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलरेडी फीलिंग्स वगैरह होते हैं, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अनकाउंटेबल में ही आ गया। कलेक्टिव नाउन्स ऑलरेडी जो ग्रुप में होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो आई थिंक कि ये नाउन के भी काइंड्स आपको समझ में आ गई होंगी। एंड वंस अगेन वी विल स्टडी इट्स काइंड्स अगेन। ओके, तो you must take a photo screenshot of this thing once again, and we will start now proper noun. Okay. Okay. That's it. Now kinds of noun. Kinds of noun में very first kind. What is the very first kind? The very first kind is proper noun. Okay. The very first kind is proper noun. Proper noun. Proper noun. Okay, proper noun. Proper noun. Proper noun. What is proper noun? The proper noun is the name of particular, a specific person, place or thing, animals. अगर particular person या particular thing या particular place का नाम जब होगा या एनिमल्स किसी का भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम को अगर ये इंडिकेट करते हो तो दैट विल बी नॉन एज प्रॉपर नाउन। तो दैट मीन्स ए प्रॉपर नाउन, ओके, ए प्रॉपर नाउन, a proper noun is the name of a specific or particular name of person, place, thing or animal. Okay, as for example, a proper noun is very simple. A proper noun is the name of a specific person. Suppose that Ram is a boy. Okay, so there are so many boys, but Ram is a specific will be in the in any group of boys. किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, जैसे राम एक पर्टिकुलर बॉय का नाम इसलिए स्पेसिफिक हो गया। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं गीता इज अ होली बुक। अब बहुत सारी बुक्स में से एक बुक आ गई, कौन सी? गीता, जो बहुत ही होली बुक मानी जाती है। तो ये स्पेसिफिक बुक की बात पे की जा रही है, तो इस तरह से ये हो गया स्पेसिफिक। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं बहुत सारे एनिमल्स में से, अगर हम बात करते हैं एक एनिमल की जिसके बात हम कह सकते हैं, जैसे हम एक डॉग है जिसको हम डॉग को जनरली एक नाम दे देते हैं, ठीक है, ट्रिकी, ठीक है, ट्रिकी इज अ पैट डॉग। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे डॉग में से एक पर्टिकुलर डॉग की बात की जा रही है, तो क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया, और स्पेसिफिक हो गया तो इसमें क्या नाम देंगे? प्रॉपर नाउन देंगे। तो आई थिंक कि प्रॉपर नाउन आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से आज की ये क्लास जो मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको इम्प्रूव करने में सपोर्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो है नाउन से ही मैं इसके यूजेस के साथ दूंगा। बट बिफोर एंडिंग आई जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and this is English Vision with Manusha. Thank you very much.